Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਗਵਟ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਹੈ ਗਿਰਜਾਘਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੈਦ ਯੂਰੀਆ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ 1760 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ 1760 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1810 ਤੱਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1810 ਤੋਂ 1825 ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1825 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1860 ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 1860 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1903 ਤੱਕ, 1903 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1926 ਤੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 1926 ਤੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਬਣੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1921 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ
साडे MLA साहब वो भी साडे विचकार पहुँच चुके ने। साडे लुधियाना देहाती के प्रेजिडेंट गालिब सोनी साहब, बहुत ही सत्कारयोग परम आदरणीय मैंबर पार्लीमेंट सरदार गुरचरण सिंह गालिब जी के लगते जिगर सोनी गालिब जी मैंबर पार्लीमेंट के सपुत्र ने, और साडे जिला काउंसिल देहाती के प्रेजिडेंट ने, और साडे यूथ कांग्रेस के प्रधान जुगेश हांडा जी, जिला काउंसिल कमेटी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, इस इलाके तो पार्षद छोटे भी राकेश पराशर जी, बहुत ही सत्कारयोग सरदार प्रितपाल सिंह जी पाली साहब, और परिवारक मैंबरों के कहना राजीव राजा जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग राजीव राजा जी साडे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ने, हुण पंजाब के सैकटरी ने। बहुत ही सत्कारयोग छोटे वीर अतीकुर रहमान जी और उबैदुर रहमान जी, नन्ना वीर जी, अल्ताफ जी, अल्ताफुर रहमान, मोहम्मद तारिक जी, मुफ्ती सद्दाम हुसैन जी, बहुत ही सत्कारयोग मुस्कीन हरारी जो साडे भारत के चीफ इमाम मौलाना उमैद इलियासी साहब, बहुत वड्डी गल है, वो भी साडे विच तशरीफ फरमा ने। मैं दिल दी गहराइयां तो सारे धर्मां वालों उन्होंने अज इत्थे जी आया कहना कि वो इत्थे तशरीफ फरमा ने। अज मैनू इत्थे दसदे फकर महसूस हो रहा है। मौलाना हबीबुर रहमान जी ने अपनी वसीयत दे विच भी अपने बेटे बड़े बेटे उस्मान रहमान जी नूं पंजाब दा शाही नायब शाही इमाम पहला ही बना दिता सी, और उन्होंने अपनी वसीयत च लिखिया सी कि मेरे जान तो बाद जिहड़ी ये जिम्मेवारी है शाही इमाम दी पंजाब दी, वो जिहड़ी है उस्मान रहमान जी नूं दित्ती जावे। और मैनू इत्थे दसदे ये भी फकर महसूस हो रहा कि वो परिवार है, इन्हां दे दादा जी ने 14 साल पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के नाल जेलां भी कट्टियां ने, गोरे अंग्रेज दीयां लाठियां भी खाधियां, सोटियां भी खाधियां। और मैनू इत्थे असी अंदर बैठे भी हुणे प्रितपाल पाली वीर जी दे नाल गल कर रहे सी, चाहे देश के हिंदुस्तान की आज़ादी की गल करिए, अज इत्थे मैं ये गल कर सकदा उन्हां आज़ादी घुलाटियां की, चाहे वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह होण, राजगुरु सुखदेव, ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा, खुदीराम बोस, जतिंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, होर किन्ने लोगों ने अपनी देश की खातर कुर्बानियां दित्तियां ने। उस दे विच इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हां दे दादा जी ने 14 साल जेल कट्टी, इन्हां दे पिता जी ने, और जदों देश का बंटवारा होया एक बार ये पाकिस्तान भी चले गए सी, लेकिन थानू इत्थे इस गल करके दसनी चाहना है जिहड़े परिवार बैठे है, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी पंडित चरणलाल, मेरे पिता जी पंडित रवानसला राजकुमार पराशर जी इसे रोड पर रहने, असी इन्हों बुलाया वापस कि तुसी आओ और अपना इत्थे आके मस्जिद नूं संभालो, और ये आए देश के नाल नाल सारा परिवार इत्थे इकट्ठा होकर अज कहते ने अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, मानस की जात सब एक पहचान वो एक पिता एकस के अंबारक, ओदी मिसाल इत्थे नज़र आउंदी है। बहुत ही सत्कारयोग साडे वड्डे वीर हरीश राय टांडा जी साडे श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू ने, साबका MLA ने, और कुल हिंद श्रोमणी अकाली दल दे वाइस प्रेजिडेंट ने, वो भी आए ने। बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीर रतन रावण जी साडे वाल्मीकि, आदरणीय दर्शन रतन रावण जी साडे वाल्मीकि धर्म समाज के हिंदुस्तान के सब तो बड़े प्रचारक भी ने, और साडे बहुत सत्कारयोग ने मेरे बड़े भरा ने, मैं बहुत समय इन्हां दे नाल काम कीता। छोटे वीर विजय दानव जी साडे श्रोमणी अकाली दल दे जनरल सकत्तर ने, कुल हिंद श्रोमणी अकाली दल दे, वो भी साडे विचकार पहुंचे ने।
बहुत ही सत्कारयोग सरदार परमजीत सिंह जी आरती वाले, क्योंकि असी वो भरा वा जिहड़े शाहपुर रोड शॉपकीपर एसोसीएशन के समूह मैंबरान जिहड़े हमेशा ही एक दूसरे दे नाल मिल के रल के असी ये सारा जिहड़ा हैगा कदे भी देश दे विच कोई भी औकड़ आई है, खास तौर पर उस वेले पंजाब दे विच जदों हालात बहुत ज़्यादा खराब सी, उस वक्त भी ये सारे धर्मां दे लोगों ने जिहड़ा ये गुलदस्ता जिथे बैठा है अलग अलग फुलों का गुलदस्ता कहते सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। तो वो मिसाल जी है इत्थे देखने को मिलती है। हर धर्म हर मजहब के साडे आगू साहबान, हर पार्टी के साडे आगू साहबान, हर धर्म तो समाजिक तौर पर मैं समझदा कि हर वो शख्स, क्योंकि हबीबुर रहमान जी दिल दी गहराइयां तो सब नाल प्यार करते सी, सब नूं गलबक्कड़ी दे विच लैके प्यार करते सी, और एक दूजे दे धर्मां दा सी मान सत्कार, यही हिंदुस्तान है। ये सोने की चिड़ी हिंदुस्तान नूं एवें नहीं कहा जाता, क्योंकि इत्थे अपनापन भाईचारक सांझ जो आपसी प्यार है वो दिखता है। और आज सब तो बड़े साडे हिंदुस्तान के मुफ्ती साहबान साडे विचकार बैठे ने, साडे लिए फकर की गल है। असी अपने आप को धन समझते हैं कि हिंदुस्तान के सब तो बड़े साडे अहुदेदारान साहबान जिहड़े ने उस्मान रहमान जी नूं अज पंजाब के शाही इमाम की पगड़ी के नाल सन्मानित करके अज उन्होंने ये अहुदा सौंपना है। बहुत ही सत्कारयोग साडा छोटा वीर साडा काउंसलर भी है चौधरी यशपाल जी। इन्हों का नाम दस दो ना, मैं 2 मिनट इन्होंने कह देना अच्छा अच्छा बस। तो हुण मैं सब तो पहला साडे जिला काउंस कमेटी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी को कहांगा कि 2 मिनट वास्ते आन तो अपने जिहड़े विचार ने वो साडे नाल साझे करनगे। जिला काउंस कमेटी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी। क्योंकि टाइम है 2 मिनट ही लोग हैं बस। पिछले दिनी शाही इमाम साहब का इंतकाल होना बहुत ही लुधियाना शहर वास्ते जिथे दुख की घड़ी सी उत्थे ही पूरे पंजाब के वास्ते दुख की घड़ी सी। उन्हों का प्यार हमेशा ही सारिਆਂ ਨੂੰ मिलता रहा। जिमें कि उन्हें मेरे वीर फराशर जी प्रधान पाली जी दस रहे सी कि लुधियाने ने माला की तरह परो के रखे इन्होंने सारिਆਂ ने। देश की आज़ादी दे विच जो इस परिवार ने हिस्सा लिता वो किसी तो भुलिया नहीं। हमेशा ही देश की एकता ते अखंडता के वास्ते काम किया और हमेशा सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लेके चले। सो अज साडे विच नहीं रहे। मैं जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना वालों उन्होंने चरणों शरधा दे फुल भेंट करदा। उत्थे ही उस्मान भाई नूं बहुत ज़्यादा मिलण का मौका मिलिया। अज उन्होंने जो ये जिम्मेवारी दी जा रही है उसका बहुत असी कांग्रेस कमेटी वालों जो स्वागत करदा, क्योंकि उनके विचार एक बड़े ही सच्चे विचार है। जिथे भी असी सभा के इकट्ठे होंगे हैं उत्थे ही उन्होंने सुनने का मौका मिलता है। एक एक लफ्ज़ का उन्होंने कहने का कोई तत्थ होंदा। सो मैं जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना वालों जिथे उन्होंने अज जिम्मेवारी सौंपी जा रही है स्वागत करता, उत्थे ही शाही इमाम साहब के चरणों श्रद्धा के फुल भेंट करता। जय हिंद। मैं हुण बड़े अदब ते बड़े सत्कार दे नाल बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा
क्योंकि ये शख्स जिन्होंने मैं बुला रहा परिवार के नाल जिन्नी इन्हां दी सांझ है उस दे नाल एक परिवारक मैंबर की तरह हमेशा इन्होंने एक दूसरे के नाल प्यार किया है। मेरी वड्डी मुराद है परम सत्कारयोग हरीश राय ढांडा जी जो कि कुल हिंद श्रोमणी अकाली दल के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट भी ने और वकील भी ने सीनियर और साबका MLA भी जी ने। उन्होंने मैं गुजारिश कराँगा कि आण के अपने बड़मुले विचार तुहाडे नाल साझे करन। सब हाजरीन नूं अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल रहमान जी नाम दे नाल नाल सबना दे हबीब सन, मित्र सन, सब नाल प्यार निभाते सी। मेरे परिवार का रिश्ता इस परिवार नाल पिछलियां 4 पुश्तां तो है। मेरे फादर ते इन्हां दे मामू हमजा जी भरावां तो वध सी, क्लास फैलो सी ते हाल ही विच वो भी सानूं विछोड़ा दे के गए। ये उस परमेश्वर अल्लाह ताला दी हुक्म है, उहदे हुक्म च रहना पैंदा सानूं। सब तो बड़ी गल है कि पूरी कौम नूं सही रास्ता दिखाने वाले सी, सदा दीन दे मुताबिक चलन वाले सी। उन्हां दा एक एक लफ्ज़ कहना मतलब रखता सी। मैनू पूरा विश्वास है कि वो अल्लाह ताला उन्हां नूं अपने कोल नवाज बख्शणगे। तो मैनू ये भी उम्मीद है कि साडा छोटा वीर उस्मान जिसनों पूरी कौम ने अज जिम्मेदारी देनी है, वो अपने अब्बू दे नक्शे कदम ते चलते हुए उस तरह ये जिम्मेदारी निभाएंगे। यही कहता होया इजाज़त लेना। खुदा हाफिज। हाँ जी हाँ अच्छा जी हाँ जी हाँ जी मैं हुण बड़े अदब ते बड़े सत्कार दे नाल साढ़े विचकार पहुँचे ने गुरमीत ज्ञान मिशनरी तो कॉलेज लुधियाना तो प्रिंसीपल सरदार गुरबचन सिंह जी, वाइस प्रिंसीपल सुखविंदर सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, मैं उन्होंने भी जी कहना। गुरप्रीत खुराना जी बहुत ही सत्कारयोग साढ़े शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी के पोतरे और लुधियाना की रहनुमाई कर रहे मैंबर पार्लीमेंट दे विच सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू मैंबर पार्लीमेंट वो भी साढ़े विचकार पहुँचे ने। उन्होंने भी मैं जी कहना देश की एकता ते अखंडता के लिए इन्हां दे दादा जी ने सरदार बेअंत सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दी। पंजाब की एकता और अखंडता के वास्ते एक शहीद परिवार दे विचों बहुत ही सत्कारयोग साढ़े लुधियाना शहर की आन बान ते शान लुधियाना के मैंबर पार्लीमेंट सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू वो भी साढ़े विचकार पहुँचे ने। सरदार कुलवंत सिंह जी सिद्धू आम आदमी पार्टी तो वो भी साढ़े विचकार आए ने, आत्मनगर के इंचार्ज ने। उन्होंने भी मैं जी कहना। मैं हुण बड़े अदब ते सत्कार दे नाल बहुत ही सत्कारयोग साढ़े वाल्मीकि धर्म समाज दे मैं समझदा कि हिंदुस्तान के प्रवक्ता भी ने, धार्मिक गुरु भी ने, बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीर श्री दर्शन रतन रावण जी और इस परिवार के गुआढ़ी भी ने हबीबर रहमान जी, तिकोर रहमान जी, उवैदर रहमान जी, ये सारे इकट्ठे इको महल्ले दे विच रह रहे हैं। इन्हां दे गुआढ़ी भी ने, परिवारक रिलेशन ने। उन्होंने मैं बड़े अदब ते सत्कार दे नाल दर्शन रतन रावण जी नूं बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा कृपा करके माइक ते आके अपने बड़मुले विचार जिहड़े आ तुहाडे नाल साझे करनगे। परम आदरणीय श्री दर्शन रतन रावण साहब।
ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਮਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, पर ईश्वर ने जे जन्म और मृत्यु अपने हाथ च रखे है, पर जीवन साडे हाथ च दिता है ते असी जीना है ते जीण वालियां दी चिंता करनी हुंदी है। मैनू कई बार लोग कहते आ कि दिवंगत आत्मा की शांति लई पाठ कर दिओ। मैं कहना जिहड़ी आत्मा उस ईश्वर उस वल्ला दे चरणों च पहुँच गई, उहदे वास्ते मेरे पाठ की की लोड़ है। जिहड़ियां आत्मावां मेरे सामने है, जिहड़ियां रूहां मेरे सामने है, उन्हां बारे मैनूं सोचना चाहिए। और ये परिवार शाही इमाम जी का दस रहे सी साडे मंच संचालक जी कि असी पड़ोसी हैं, बचपन तो देखा आ, इन्हां दे बजुर्गों को भी देखा आ, पर आ जिद्दां बैठे आपां अज ये तो एक गवाही है, गवाही है कि जिहड़ा टीवी च दिखाया जाता देश, टीवी च जिहड़ा देश दिखाया जाता आ गवाही है कि असली देश आ है। टीवी वाला नहीं जिथे सारे लोग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सारे लोग लड़ते हुए नज़र आन। और मैं इस गल की गवाही दे रहा कि साडे मुहल्ले च मेरी उम्र 60 साल हो गई, मैं इस परिवार को किसी को गाली देंदे हुए नहीं देखा। रुतबा बड़ा आ, ताकत बड़ी है, कदी कदी हंकार आ जाता है। ये नम्रता होनी जी ज़्यादा जरूरी है। और मैं क्या सी दोनों घटनावां नाल नाल है, दुख का समय भी है ते दूसरी अज साडा छोटा बच्चा आ उस्मान, पर जिस तरीके ना उसने कमांड की है, कौम की कमांड पिछले 4-5 साल तो जो मैं ऑब्जर्व किया है, जो कमांड की है और जिन्हें खतरनाक हालातां च और नम्रता के नाल कमांड की है, वो अपने आप च एक मिसाल है। तो इस तो ज़्यादा वधिया शख्सियत नहीं हो सकती जिहदे सिर ते आपां पगड़ी रखीए। इन्हां शब्दां नाल इस प्रार्थना नाल तुहाडे सारिਆਂ तो इजाजत लैंदे हुए जय वाल्मीकि, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया रतन राम जी। मैं हुण गुजारिश करांगा इस इलाके दे साडे जंपल काफ़ी साडे नाल इत्थे पढ़े बड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेशन च भी बड़े बड़े अहुदियां ते रहे और अज साडे प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी के MLA ने सरदार कुलदीप सिंह जी बैद, जिहड़े कि बिल्कुल साडे 6 कूचा 7 कूचा दे विच जिन्हां दा जन्म होया इत्थे, अपने परिवारक मैंबर मैं समझदा इस परिवार दे सरदार कुलदीप सिंह बैद MLA साहब नूं मैं बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा किरपा करके आण और अपने बड़मुले विचार तुहाडे नाल साझे करन। बहुत ही सत्कारयोग साडे इस इलाके दे सारे पतवंते सज्जन, बाहरों आईयां हुई बहुत ही महान शख्सियतां अज इत्थे मौजूद ने। मैं तुहाडे सारिਆਂ नाल 1-2 मिनट ची कुछ बचपन दीयां यादां ने, क्योंकि मेरा पालन पोषण बिल्कुल इस मस्जिद दे विच ही मैं खेडदा रहा। 7 कूचे ते 6 कूचे साडा घर सी, इत्थे ही रहिंदे रहे हैं। इस परिवार नाल इन्ना क घुले मिले मेरे पिता जी 1939-40 दे विच इत्थे एस्टैबलिश होए सी पिंड बलारा तो आके। जिस दिन मेरा PCS का रिजल्ट आया सी कि मैं तुहाडे नाल गल शेयर करनी चाहूँगा जी सारिਆਂ नाल। ये 1989 की गल है, जदों
सानू पता लग्या तो मैं तो मेरे पिता जी इत्थे मस्जिद के कोले ही सीगे। किसी ने आके दस्या कि रिजल्ट आ गया, कुलदीप तुसीं सिलैक्ट हो गए। तो मेरे पिता जी किते होर जाण दी बजाय मैनू इस मस्जिद दे विच लै आए इमाम साहब कोले। इन्हां नूं मत्था टेकिया, इन्हां ने आशीर्वाद दिता। ये मैं गल तुहाडे नाल तां सांझी करनी चाहुंदा कि इस परिवार नाल इन्ना वधिया ताल्लुक रहा, बहुत प्यार मिलिया। उस्मान, सारे जिन्ने भी साडे इत्थे परिवार दे मैंबर बैठे हैं, उन्हां नाल बचपन तो लैके हुण तक एक रिश्ता बनिया रहा। बाबा फरीद का एक श्लोक है, आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। ये जिहड़ा बाबा फरीद जी का श्लोक है, ये मैं समझदा कि इस परिवार के उत्ते इनबिल्ट टुकदा है। वो वाहिगुरू अल्लाह कहता है, बाबा फरीद जी ने जिहड़ा श्लोक लिखिया है, हे इंसान जे तू अपने आप नूं सवार ले तो तेरा मैं हो जा। आप सवारे मैं मिला तैनू मैं मिल जा, मैं मिलिया सुख होए, जे तैनू मैं मिल जा तो सुख होए। जिहड़ी अगली तुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाहिगुरू अल्लाह जिन्हों भी आपां पूजदे हो कहता जे तेरा मैं हो जावां तो तेरा सारा जग हो जाए। सो आ जिहड़ा जग इत्थे इकट्ठा होया होया, मैं समझदा इस परिवार ते उस अल्लाह ताला दी ते वाहिगुरू दी मेहर है। दुख बहुत है, मैं तो इन्हां दे नाल बचपन बिताया, जवानी बिताई है, इत्थे खेडदे रहे हैं। खालसा नैशनल सीनियर सैकेंडरी स्कूल च मैं पढ़िया। सो लेकिन जाना सारिਆਂ ने हुंदा है, बट इस परिवार नाल साडे परिवार दा मेरे पिता जी का, मेरे दादा जी का क्योंकि बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहा है। बहुत अफसोस है जान वाले बंदे आउंदे नहीं। भाई साहब ने बड़ा वधिया कहा कि असीं कहने शांति वास्ते अरदास कर रहे हैं। मेरे दिल नूं इन्हां दी गल लगी है कि जिहड़ा एडा खूबसूरत एंड वधिया इंसान जिहड़ा साडा रंगला सज्जन साडे विच नहीं रहा, ओदी जो शख्सियत सी उन्हें ही अगे जाके दरगाह दे विच भी ओदी जिहड़ी है उन्हें अगे शांति देनी है। तुहाडे सारिਆਂ दा धन्नवाद। जय हिंद। सिर्फ 10 मिनट वास्ते ये मंच जिहड़ा एक धार्मिक साडी मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब वो 10 मिनट संभालणगे। उस तो बाद जिहड़ा बाकी का कार्यक्रम और पगड़ी वाला जिहड़ा काम है, जिन्हें साडे लीडर साहबान आए ने और सारे आए ने, वो असीं करांगे। क्योंकि पहला एक जिहड़ा ये 10 मिनट का धार्मिक जिहड़ा मुफ्ती साहबान दा, वो मैं बहुत ही सत्कारयोग साडे मोहम्मद आरिफ जी नूं गुजारिश करांगा कि 5 मिनट मंच संभाल के तो वो काम जिहड़ा है वो अदा करांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। इस तरह के दीनी और इल्मी प्रोग्रामों के हवाले से हमारे अकाबिर की ये रिवायत रही है कि वो उसका आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से फरमाया करते हैं। अपने अकाबिर व मशाइख की इस रिवायत पर अमल पैरा होते हुए मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए आवाज़ देता हूँ। जामिया हबीबिया लुधियाना यहाँ के मुदर्रिस कारी मोहम्मद मुहतरम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत फरमाकर इस बाबरकत इजलास का आगाज़ फरमाएँ। बस स्टार्ट कर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। छोड़ दे। ज़ाते हक जल्ल मजदूहू के बाद अगर कोई हस्ती काबिल मद हो तौसीफ़ है तो वो बिला शक व शुबा जनाब सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। इसलिए तिलावत कलामुल्लाह के बाद अब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ हमारे शहर के मशहूर शायर और मदीना मस्जिद गुलाबी बाग के काबिल सद एहतराम इमाम व ख़तीब कारी मोहम्मद मुजाहिद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उनका उम्मती होना था मेरे मुक़द्दर में, उनका उम्मती होना था मेरे मुक़द्दर में। जिन जिक्र जिन का करती है जिक्र जिन का करती है मछलियाँ समंदर में, जिक्र जिन का करती है मछलियाँ समंदर में। पत्थरों को भी जिसने अरे बोलना सिखाया है, पत्थरों को भी जिसने बोलना सिखाया है। मौजिज़े झलकते हैं, मौजिज़े झलकते हैं मुस्तफ़ा के पैकर में। जिक्र जिन का करती है मछलियाँ समंदर में। भाई दो चार अशार जी पढ़े थे, नात का आगाज़ हो चुका। अब वालिद मोहतरम की शान में कुछ अशार मुझे पढ़ने का हुक्म हुआ है, बिला ताख़िर के मुलाहज़ा फरमाएँ। दिल जिगर को वो बिस्मिल सदा कर गए, दिल जिगर को वो बिस्मिल सदा कर गए। शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। जिंदगी दीन बर हक पे कुर्बान की, रात दिन हर घड़ी और हर आन की। यूं खुदा से नबी
से वफा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, शेर पंजाब यूं, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। वो शुजाअत वो जुर्अत न भूलेंगे हम, शेर सी वो गरज भी न भूलेंगे हम। वो शुजाअत वो जुर्अत न भूलेंगे हम, शेर सी वो गरज भी न भूलेंगे हम। आपको बातिल से कैसे जुदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। दिल जिगर को वो बिस्मिल सदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। वो थे खत में नबूवत के एक पास बा, खुद को नामों से आका पे वो बेगुमा, दिन ब दिन बिल यकीन हाफिदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। आप भी मेरे साथ में एक मरतबा कह लीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। निज़ाम का आखिरी बंद है, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए। दिल जिगर को वो बिस्मिल सदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। सबसे दमदार जो बंद है वह मुलाज़ा फरमा रहा हूँ बतौर ख़ास। रोब दुश्मन का खाया न जिसने कभी, रोब दुश्मन का खाया न जिसने कभी, खौफ से तारी दुश्मन पे थी कब कभी, खौफ से तारी दुश्मन पे थी कब कभी। फिर भी ले जगह पे दया कर गए, फिर भी ले जगह पे दया कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। दिल जिगर को वो बिस्मिल सदा कर गए, शेर पंजाब यूं गमज़दा कर गए। अस्सलाम। आज हम जिस अजीम निस्बत पर जमा हैं उससे आप सभी हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमानी लुधियानवी दामत बरकातुहुमुल आलिया आज शाही इमाम पंजाब के अजीम मनसब पर फाइज होने जा रहे हैं। आज से ठीक 41 साल पहले इसी जामे मस्जिद में हज़रत मौलाना मोहम्मद यहया लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अहमद सईद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साबिक शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद के मायाए नाज शागिर्द मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और दारुल उलूम देवबंद के साबिक मुहतमिम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सईदुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में 1980 में इसी जामे मस्जिद में हम सब के मखदूम हज़रत अक़दस मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहिमहुल्लाह के सर पर शाही इमाम पंजाब की दस्तार रखी गई थी।
और उस मौके पर उनके वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद रहमानी लुधियानवी रहमहुल्लाह की ज़ुबान से ये तारीख़ी कलिमात सादिर हुए थे कि आज मैंने अपना मिशन मजबूत हाथों में थमा दिया है। इंशाअल्लाह मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूर नज़र हबीबुर रहमान हबीब सानी साबित होगा और अपने कारनामों से अपने दादा रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के नाम को, काम को और उनके मिशन को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। तफसीलात में जाने का ये मौका नहीं है। शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत अक़दस मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमहुल्लाह तक ये 300 साढ़े 300 साला उलमाए लुधियाना की इल्मी, दीनी, दावती, सियासी, समाजी खिदमात का एक लंबा सफ़र है। 350 साल की मुद्दत में इस ख़ानदान ने इस मुल्क की आज़ादी के हवाले से, इस मुल्क में बसने वालों की हमाजहती खिदमात के हवाले से जो कारनामे अंजाम दिए हैं, सच्ची बात यह है कि 15 मिनट के इस मुख्तसर वक्त में इन चीज़ों की तरफ इशारा भी दुश्वार है। आज के इस यादगार और बाबरकत मौके पर हमारे बीच हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो अहम शख्सियात जमा हैं, उनमें से चंद के नाम में ज़िक्र किए देता हूँ। हज़रत अक़दस पीर जी अलहाज हाफिज़ हुसैन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हज़रत मौलाना उमेर इलियासी साहब दामत बरकातुहुम, सदर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इमाम कुल हिंद। हज़रत मौलाना मुफ्ती इर्तिकाउल हसन साहब कांदलवी, मुफ्ती आज़म पंजाब। हज़रत मौलाना कारी सईदुज़्ज़मा साहब खिज़राबादी, सदर मजलिस अहरार इस्लाम हिंद सूबा हरियाणा। हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, सदर राब्ता मदारिस अरबिया इस्लामिया सूबा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व चंडीगढ़। हज़रत मौलाना वसीम अकरम साहब संगरूर, कारी मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी, मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब कासमी लुधियानवी, मौलाना कबीरुद्दीन साहब फारान मज़ाहिरी, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब मालेर कोटलवी, हाजी मोहम्मद नौशाद साहब बिजनौरी, हाजी मोहम्मद फुरकान साहब बिजनौरी, मोहम्मद मुस्तकीम साहब खानकाह रायपुर और इनके अलावा पंजाब के और मुल्क भर के अवाम व खवास बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं। जबकि इरादतन और कसदन आज के प्रोग्राम को बहुत ही मुख्तसर रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला का करम है कि मुल्क भर से उलमाए किराम यहाँ जमा हैं और अपनी तंजीमों की तरफ से, अपनी जमातों की तरफ से बतौर नुमाइंदा आज की हमारी इस महफिल में, मजलिस में शरीक है। इस यादगार मौके पर मैं मजलिस अहरार की तरफ से आने वाले अपने तमाम उलमा का और मिल्ली और सियासी कायदीन का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और आज के इस इजलास के मौके पर ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमहुल्लाह ने अपने फ़र्जंद हबीब सानी के बारे में जिन ख्वाहिशात का इजहार फरमाया था, जिन तवक्कुआत का इजहार फरमाया था और जिस तरह वो उन पर खरे और पूरे उतरे, इसी तरह हमारे शेर इस्लाम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह पिछले 2-3 साल से मुसलसल इस तरह के इशारा दे रहे थे कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। इस सिलसिले की तफसीलात भी इस वक्त उनका तफसीली जिक्र मुश्किल है। उन्होंने ख़ुद मुझसे 1.5 महीने पहले फरमाया था कि मुफ्ती साहब, डॉक्टरों ने मुझसे इस तरह की बात कही है और कुछ इस तरह के ख्वाब भी मैंने देखे हैं जिनसे मुझे अब
करीब बयकीन अंदाज़ा हो गया है कि अब मेरा आखिरी वक्त मुश्किल है, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मेरे लख्ते जिगर को, मेरे नूर नज़र को, मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी साहब को मेरे मिशन पर खड़ा हो गया है और खड़ा कर दिया है। और ये जिस तरह पिछले 15-20 साल से मेरे कामों को लेकर चल रहे हैं, मैं पूरी तरह इनसे मुतमईन हूँ और इंशाअल्लाह ये मिशन आगे भी इसी तरह कायम और दायम रहेगा। हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हज़रत अक़दस मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से जाते जाते अपने लख्ते जिगर और अब हम सब के कायद हज़रत मौलाना उस्मान साहब के बारे में जिस तवक्को का इजहार फरमा कर गए हैं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना उस मिशन को लेकर बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने ख़ानदान की 350 साल रिवायात को, अक़दार को बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी पुख्तगी के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और दुनिया भर में अपने खानवादे के मज़ीद नेक नामी का, शोहरत का ज़रिया और वसीला साबित होंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल करिए भैया, अब जल्दी करिए, जो काम है वो सब मुकम्मल करिए जल्दी। वक्त की बहुत किल्लत है। मुफ्ती खलील साहब, अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सूबा पंजाब की बुज़ुर्ग शख्सियत, राब्ता मदारिस पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ के सदर हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती खलील साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना कलिमात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आज जिस तक़रीब में हम जमा हैं, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है और हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जमंद को उनका कायम मकाम तस्लीम करने के लिए और बनाने के लिए हम लोग जमा हुए हैं और हज़रत की क़ुरबानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। जो उनकी क़ुरबानियाँ हैं वो हम सब के सामने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज़रत के साथ पुराना ताल्लुक़ बाप दादों से लेकर के घरेलू ताल्लुक़ात थे और सारी चीज़ों से हम अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं और उनकी क़ुरबानियाँ हमारे सामने हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके फ़र्ज़ंद मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब सल्लल्लाहु को अल्लाह ताला उनके कायम मकाम बनाए और उनका जो मिशन था उसको मुकम्मल तौर पर करने की तौफ़ीक़ और हिम्मत बख्शे। हमें उम्मीद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह वो इस मिशन में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फ़रमाए और अपने फजल व करम से उनको इसके ऊपर इस्तकामत और इस्तक़लाल के साथ इस काम को करने की और इस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मुत्तहिदा पंजाब के एक बहुत बड़े दीनी और रूहानी मुहसिन हज़रत मुल्ला जी अब्दुल करीम साहब बूढ़ियावी रहमहुल्लाह के इल्मी और रूहानी जानशीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुल्क की कई जमातों और तंजीमों के सरपरस्त रुकन
खानकाह बूढ़िया के और वहाँ के इदारे के मुंतज़िम हज़रत अक़दस पीर जी अलहाज हाफिज़ हुसैन साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इस मुक़द्दस और यादगार मौके पर हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना कलिमात से हम सबको नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। बुजुर्गों, भाइयों, जिस शख्सियत की याद में आज हम सब जमा हैं और उनके जाने के बाद दुनिया से वो रुखसत हो गए, हमें छोड़कर चले गए। ऐसी शख्सियत तो खुद चली गई लेकिन बहुत दुनिया को रोते छोड़ गए। उनकी ज़िंदगी, उनके बेहतरीन काम करने के तरीक़े, इंसानियत दोस्त और अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर फ़िदा होने वाले ऐसी शख्सियत के जाने का वाकई अफसोस होता है और एक खला है। फरमाया एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है। ये ऐसे आलिम थे कि उनको यूँ कहा जाए कि आलम की मौत है। अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा था। वो ऐसे शख्स थे कि तमाम हम वतन भाइयों इंसानों का दर्द उनके दिल में रहता था। वो खिदमत करते थे बिला किसी तफरीक मजहब व मिल्लत। आज उनके गम में ये मजमा खुद ये जाहिर कर रहा है कि कितना उनके जाने पर सभी को सदमा है। अल्लाह हमें सबको सब्र जमील अता फरमाए और उनके अहले खाना को, पूरे ख़ानदान को, सबको सब्र जमील अता फरमाए। और वो चले गए तो जो काम करके गए हैं उस काम को हमेशा अल्लाह ज़िंदा रखे। उनकी जगह पर उनके प्यारे बेटे छोटे साहबजादे मौलाना मोहम्मद उस्मान साहिब, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में उन्होंने काम को संभाला, उनको सुकून दिया। वो बड़े खुश थे कि मेरे इस मिशन को मेरा ये बेटा लेकर उठा है। अभी जैसे अलाउन सर बता रहे थे, आपको कुछ बतलाने की ज़रूरत नहीं, आप सबको इल्म है कि वो क्या थे। हमारी तो बस ये दुआ है और इरादा है कि हम उन जैसी आदत, उन जैसी खसलतें, उनके वो कारनामे अपनी ज़िंदगी में लाएं ताकि उनकी अच्छाइयाँ ज़िंदा रहें। अगर हम उनको याद करते रहें और अपने आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में न लाए तो यह गलत बात है। तो जो वो करते थे हम उनको अपनी ज़िंदगी में लाएं, उस अच्छाई को, उस भलाई को, यही काम आएगी। इंसान जो कुछ दुनिया में करता है उसके सिर्फ अच्छे अमाल ही काम आते हैं, वरना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। अगर वो दुनिया बनाता है, हुकूमत बनाता है, ज़मीनें बनाता है, लेकिन मरते वक्त सबको छोड़ देता है, अपने दोस्तों को छोड़ देता है, लेकिन अगर उसके अच्छे या बुरे कर्म हैं वो उसका साथ नहीं छोड़ते। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें हज़रत मौलाना के जाने के बाद उनके मिशन को ज़िंदा रखना है। हम हर शख्स अपनी ज़िंदगी में उनके मिशन को लाएं। वो मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात पेश करते थे,
कि जो हकीकत और उनको अल्लाह ताला ने ये हौसला दिया था, ये हिम्मत दी थी कि मजलूम की मदद के लिए जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते थे और सब के साथ एक होते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज उनके जाने के बाद आज यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि उनकी जगह पर उनके जानशीन मुकर्रर किया जाए। वो जानशीन मुकर्रर है, बस हम और आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनसे काम ले, उनकी मदद करे और हम सब उनके साथ रहें इस नए काम में। हम उनका ताउन करें, उनका साथ दें ताकि काम उरूज करे और ये काम तरक्की करे। अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी रखे, इस उलमा के सिलसिले को, वारिस अंबिया के सिलसिले को अल्लाह क़यामत तक चलाए रखे और ये सिलसिला चलता रहे और ये फैज़ जारी रहे। हम और आप सब मिलकर इसकी कोशिश करेंगे, हम साथ देंगे, हम साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे सूबा पंजाब के मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इर्तिकाउल हसन साहब कांदलवी दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपने कीमती ख़यालात से, अपने मुख्तसर कलिमात से यहाँ मौजूद मुसलमाना ने लुधियाना व पंजाब को महजूज़ मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बाप का इल्म बेटे को अगर अज़बर हो, बाप का इल्म बेटे को अगर अज़बर हो, फिर पिसर वारी से मीरा से पिदर क्यों कर हो। आज हम सब के लिए बड़ी सआदत और ख़ुशी की बात है कि उलमाए लुधियाने का 350 साला सफ़र के अंदर एक नई मंजिल और एक नई कड़ी का इजाफ़ा हो रहा है, जिससे ये उम्मीद हो चली है कि ये सफ़र इसी तरह जारी और सारी रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि उलमाए लुधियाना ने जंग आज़ादी ही नहीं बल्कि उससे बहुत पहले से मिल्लत की रहनुमाई, मिल्लत की सियासी, समाजी और हर तरह की खिदमात अंजाम दी हैं और ये सिलसिला हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से चलता हुआ हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी तक पहुँचा। और आज की ये मजलिस हमें ये उम्मीद दिलाती है और हमारे सामने ये तवक्कुआत पैदा करती है कि ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा, बहुत देर तक और दूर तक ये फ़ज़ा बाकी रहेगी, ये चमन महकता रहेगा और ये फूल खिलते रहेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी को और यकीनन उनको इस बात का एहसास होगा और ये होना भी चाहिए कि आज उनके सर जो दस्तार बंध रही है, आज उनके कांधों पर जो जिम्मेदारी डाली जा रही है, ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उलमाए लुधियाना की 350 साला खिदमात की हिफाजत की ज़िम्मेदारी है, उसके तसलसल को बाकी रखने की ज़िम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी है। और हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि हज़रत मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी दामत बरकातुहुम अपने वालिदे मरहूम की हयात में ही इस सिलसिले को और इस काम को और इन खिदमात को अपनाए हुए हैं। इंशाअल्लाह उनके रास्ते में कांटे नहीं आएंगे बल्कि जब वो चलेंगे तो उनको अपने सामने हमवार रास्ते मिलेंगे। उनके लिए लोग अपनी
पलकें बिछाएंगे, उनके लिए लोग उनके रास्तों में फूल की पत्तियां छिड़केंगे और यकीनन और वो आसानी के साथ उन खिदमात के तसलसल को बाकी रख सकेंगे जो उनके आबाओ अजदाद ने एक मिसाल के तौर पर रोशन कारनामी की सूरत में अपनी मीरास के तौर पर छोड़ी हैं। मैं फिर वही शेर पढ़ूंगा, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर वारी से मीरासे पिदर क्यों कर हो। बड़ी खुशी की बात है कि उलमाए लुधियाना ने जो मीरास छोड़ी थी, उलमाए लुधियाना ने जो वरासत छोड़ी थी, कौम की खिदमत की, फलाह व बहबूद की हिफाजत की, सियासी, दीनी, मिली और समाजी रहनुमाई की, आज भी उस मीरास को अपना वारिस मिल गया है और वो मीरास ज़ाय नहीं हुई है और वो मीरास इसी तरह बाकी रहेगी और नस्लम बादा नस्लिन इस ख़ानदान के अफराद उस मीरास को अपने सीने से लगा कर रखेंगे और मिल्लत इस ख़ानदान से फ़ायदा उठाती रहेगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं खानवादाए उलमाए लुधियाना के जवानुल उम्र आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब कासमी लुधियानवी को आवाज़ देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती इफ़ादात से सामीन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बहुत सारे उलमा को मुख्तलिफ़ सिफ़ात से नवाजा, लेकिन एक ख़ासियत जो अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा लुधियाना को अता फरमाई और उसके साथ साथ उनके वारिसीन को अता फरमाई, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म नबूवत का जितना काम उलमा लुधियाना से लिया, तारीख़ के अंदर उसकी बिल्कुल मिसाल नज़र नहीं आती। और हमारे ताया जी हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहिमहुल्लाह, उनके अंदर ये नुमाया खासियत थी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखें बेशुमार उलमा, बेशुमार मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, लेकिन जो खासियत अल्लाह ताला ने, जो इम्तियाज़ अल्लाह ताला ने मौलाना को अता फरमाया किसी को नहीं। कि जिस तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर शैतान भागा करता था, उसी तरह ताया जी मरहूम का नाम सुनकर कादियानी भागा करता था। और ये क्यों ना होता, क्योंकि मौलाना के रगों के अंदर उमर बिन खत्ताब का खून दौड़ता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक की निस्बत अता फरमाई थी, वो जाहो जलाल जो उमर बिन खत्ताब के अंदर था, अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा लुधियाना को अता फरमाया और उसका इम्तियाज़ हमारे ताया मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी को अता फरमाया। जिस तरह उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गली कूचों से शैतानों को भगा दिया, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के नाम के जरिए से गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, सूबा सूबा कादियानों को भगा कर दम लिया है। मुझे याद है कि सहारनपुर के अंदर कादियानियों ने अपना कंट्रोल कर लिया था, बहुत उलमा आए, बहुत लोग आए, उनको भगाने की कोशिश की लेकिन नहीं भगा सके।
लुधियाना से मौलाना को बुलाया गया, एक तकरीर हुई, वो दिन है और आज का दिन है कादियानी का वहाँ का सफाया हो गया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मीरास अता फरमाई है कि ख़त्म नबूवत की हिफाजत हमारा इम्तियाज़ है। और कादियानी सिर्फ इस्लाम के दुश्मन नहीं बल्कि देश के भी दुश्मन है, हिंदुस्तान की आज़ादी के दुश्मन है। वो अंग्रेज़ के गुलाम थे और मुसलमान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही थे। तो कादियानियों ने जिस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसी तरह मुल्क को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो उलमा लुधियाना ने दोनों मुहाज पर कि इस्लाम की खिदमत भी बाकी रहे और देश का वकार भी बाकी रहे, इन दोनों की खिदमत अंजाम दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें हमें मीरास के अंदर अता फरमाई। और ये खुशी की बात है कि मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमानी दामत बरकातुम व करमातुम, इनके अंदर ये दोनों खुसूसियत मौजूद है कि देश की खिदमत कैसे करनी है ये भी इन्हें बखूबी मालूम है, और इस्लाम की खिदमत कैसे करनी है इन्हें ये भी मालूम है। तो मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह हबीबुर रहमान का नाम सुनकर कादियानी भागा करता था, इंशाअल्लाह ताला उस्मान का नाम सुनकर ही भागा करेगा। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, हम सबको अपने बड़े भाई उस्मान रहमानी का साथ देने की तौफीक अता फरमाए और कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ हर कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम। भाई देखो, ऐसा है, वक्त की किल्लत है, ये तकरीरों का समय नहीं है। देखिए 19 तारीख को श्रद्धांजलि का बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें आप खूब बोलिए। देखिए ये समय सिर्फ जो है आज हमने सिर्फ प्रोग्राम रखा कि उनको दस्तारबंदी तकरीर का मौका नहीं है। मैं सबसे ही गुजारिश करूंगा कि भाई जल्दी से मुख्तसर करके उनको पगड़ी पहना के उनका इस्तकबाल करें। 19 तारीख को हम फाइनल बड़ा प्रोग्राम करेंगे। आप खूब बोलिए, हम सुनने आऊंगा, दिल्ली से स्पेशल आ जाऊंगा 19 तारीख को सुनने, खूब सुनाइए कितना, लेकिन ये वक्त नहीं है। हमारे भारत के तमाम इमामों के चीफ इमाम हज़रत मौलाना उमैर इलियासी दामत बरकातुहुम आखिरी खिताब के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना के बारे में ये कह देने में कोई मुबालगा ना होगा कि वो इस वक्त मुल्क बैरून मुल्क इस्लाम के और मुसलमानों के एक बहुत बड़े सफ़ीर और तर्जमान हैं। आपको जितनी मकबूलियत मुसलमानों में है उतनी ही मकबूलियत हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में है। गंगा जमनी तहजीब के आप एक बहुत बड़े अलमबरदार हैं। मुल्क की एक ऐसी मायाए नाज मिसाली शख्सियत। मेंबर पार्लियामेंट है यहाँ के, ये बोलेंगे उसके बाद मैं खत्म कर बहुत ही अदब ते सत्कार दे नाल पंजाब ही नहीं हिंदुस्तान दे शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी दे पोतरे सरदार बेअंत सिंह जी ने देश की एकता ते अखंडता वास्ते अपनी कुर्बानी दी, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा रहे। अज उस परिवार का चिराग जो इस महान धरती लुधियाना शहर जिन्होंने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है उसकी प्रतिनिधित्व करता है। हिंदुस्तान की महापंचायत के अंदर मैंबर पार्लीमेंट के अंदर सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू शहीद सरदार बेअंत सिंह जी के पोतरे, मैं बड़े अदब ते सत्कार दे नाल, क्योंकि इस परिवार का बेअंत सिंह परिवार के नाल बहुत नेड़ला ते बहुत मैं समझदा कि बहुत बड़ा रिश्ता है। अज उस रिश्ते के मुताबिक ये आए ने। मैं बड़े अदब ते सत्कार दे नाल बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा कि अपने बड़मुले विचार जिहड़े ने तुहाडे नाल साझे करनगे सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू मैंबर पार्लीमेंट लुधियाना। जैसे कि चीफ इमाम साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक है, कई बार कोई ज़्यादा भाषण देने का वक्त नहीं होता,
क्योंकि बहुत ही जहाँ आज लुधियाना के लिए या पंजाब के लिए, क्योंकि हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड थे, बहुत ही हमारे आदरणीय थे, क्योंकि तकरीबन 3 पीढ़ियों का सब जो बैठे हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, हर पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पे जो आज लुधियाना का है वो यहाँ पे मौजूद है, जो चाहे वो कोई भी पार्टी। ये उनका, मैं कह सकता हूँ, जो ज़िंदगी का उनका कमाया हुआ धन है, यही है। हम हर कोई भी प्रोग्राम हो वो सबको बुलाते थे, लेकिन एक स्टेज होती थी मौलाना साहब, एक मंच इस लुधियाना में जहाँ हर जात बरादरी, हर पार्टी का उस मंच पे मौजूद होता था, और उनकी आशीर्वाद से तो हमें सबको मतलब एक रंग में मिलने का मौका मिलता था जब। तो आज वो हमारे में नहीं है, लेकिन आप हमारे उनके लगते ददर, और सब जानते हैं उनको, क्योंकि बहुत दिनों से वो भी उनकी शाया में तकरीबन सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा दिन है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ रही है। और शाही इमाम आज आप उनको पगड़ी सारे बनाएंगे, तो मैं यही अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ, उनको ताकत दे, जिस तरीके से उनके पुरख जो ख़ास तौर पे आपके कुरान जो बताया गया है उसके ऊपर वो अमल करेंगे, और इस लुधियाना के भाईचारे आपसी सांझ को वो बरकरार रखेंगे। और मैं एक जिम्मेवारी से, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते कह सकता हूँ भी सब मज़हबों का, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, गरीब अमीर है, हमारी सबकी इनके साथ एक जो सांझ है, मैं समझता हूँ उसे आज तक तो कोई तोड़ नहीं सका, ना ही कोई तोड़ सके। तो इतने शब्दों में जहाँ एक गहरा दुख भी है भी जिनकी एक आवाज़ से सारा लुधियाना इकट्ठा होता था, वो आज हमारे में नहीं है। लेकिन ये भी फ़ख्र है भी उनके आज जो हम पगड़ी की रस्म करेंगे, उस्मान जी मेरे बड़े भाई, तो ये तो मैं नहीं कह सकता, कहना चाहिए भी नहीं भी बाप से और उससे बड़ी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, पर उनके आशीर्वाद से ये मीठे फल भी देगा और इस शहर को शाया भी देगा। इतने शब्दों से मुझे मौका मिला, मैं आपका आभार हूँ, और आप पहुँचे ख़ास तौर पे सारे, इसके लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी, हाँ जी। मैं बहुत ही सत्कारयोग साढ़े साबका मिनिस्टर पंजाब श्रोमणी अकाली दल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदार हीरा सिंह जी गाबिया साहब 2 मिनट वास्ते, क्योंकि उस तो बाद फिर इमाम साहब, हाँ, श्रोमणी अकाली दल से साबका मिनिस्टर भी हैं और हमारे सीनियर हैं, इनके बाद आज MP साहब एक मैं, क्योंकि ममता आशू जी बैठे हैं, हमारे भारत भूषण आशू जी यहाँ से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, जिनका परिवार है वो, क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा था, मैं आपसे माफ़ी चाह के ये चाहूँगा, क्योंकि एक एक नुमाइंदे ने बोलना है हर पार्टी से, वो ज़रूर आपकी इजाज़त। थैंक यू। बहुत ही सुल्तान जो शाही इमाम दे इस श्रद्धांजलि समागम में पहुंचे
ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ही पार्टियां के नुमाइंदे सलाम अलैकुम। देश की आज़ादी लई इस परिवार दीयां जो कुर्बानियां ने ते देश की आज़ादी नूं कायम रखने वास्ते भी जो कुछ इन्हां ने रोल अदा किया वो भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी लई जेलां कट्टियां बजुर्गों ने, जिवें मेरे तो पहला दस्या गया 300 साढ़े 300 साल तो इस लहर नाल जुड़े हुए और जो उन्हों का सुभाव सी शाही इमाम साहब का नहीं मिलना शाही इमाम वर्गा इहो जिहा मनुख जिहड़े राजनीतिक सी, धार्मिक सी, समाजिक भी, हर पक्षां दे उत्ते पूरे सीगे और उन्होंने अपने समय दे विच जदों भी किते देश ते भीड़ पई जां गुआढ़ी किसी देश ने ललकारिया तो सब तो पहला शाही इमाम ने मैदाने जंग में आन के कहा मैं खड़ा हाँ देश के नाल, देश के लोगों के नाल। तो इस करके अज वो साडे विच नहीं, साडे छोटे वीर उस्मान जी ते जिम्मेवारी पै रही है। आप सारे अरदास करिए अल्लाह ताला अगे, वाहगुरू अगे, परमात्मा अगे, गौड़ अगे कि उन्होंने शक्ति दे, ताकत दे कि जो पुरखियां ने दिता उन्होंने झोली में पाया इन्होंने, जो पुरखियां दी कुर्बानियां ने, जो पुरखियां ने सानू समाज दे विच विचरण की जाच दसी आ, उन्होंने मिले, वो आपदे पिता की तरह शाही इमाम की तरह कौम की, देश की, सूबे की सेवा करे। तो मैं बहुता समा ना लवां क्योंकि समा आज्ञा नहीं दिंदा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया गाबिया साहब। मैं हुण बड़े अदब ते सत्कार दे नाल साडे लुधियाना की आन बान ते शान, बहुत ही सत्कारयोग साडे छोटे वीर पंजाब के कैबिनेट के मिनिस्टर परम आदरणीय भारत भूषण आशू जी, सत्कारयोग उन्होंने धर्मपत्नी साडी छोटी भैन ममता आशू जी जो काउंसलर भी ने, मैं उन्होंने बड़े अदब ते सत्कार दे नाल बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा कि पंजाब की कैबिनेट की तरफ तो जो मैसेज वो आशू जी का लैके आए ने वो और साडे चीफ मिनिस्टर साहब का मैसेज जिहड़ा भैन साडी ममता आशू जी करनगे, अपने बड़मुले विचारों के नाल तुहानूं साझा करनगे अपने विचार तुहाडे। अल्लाह दे घर जामा मस्जिद लुधियाना दे विच बैठे सारी हाजरीन, सारी पोलीटिकल पार्टी के आए हुए नुमाइंदे, धर्म गुरु, जिन्हें भी भाईचारा इत्थे बैठा है, सबनों सब तो पहला तो मैं शाही इमाम मेरे बड़े अंकल उन्होंने शरदा दे सुमन भेंट करदी हाँ। साडे पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों, सारी कैबिनेट वालों और हर उस नुमाइंदे वालों जिहड़ा कि लोगों को रिप्रजेंट करता है। अंकल नाल एक रिश्ता आशू जी का परिवारिक सी। अज आप चाहे किसी भी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पर जिन्ने भी लोग इत्थे बैठे हैं, चाहे पाली अंकल है, टांडा साहब है, गाबड़िया साहब है, होर भी सब नाल एक परिवारिक रिश्ता सीगा। जदों ये खबर आई शुक्रवार सवेरे कि शाही इमाम अंकल नहीं रहे, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होएगा जिहड़ा अपना कामकार छड्ड के मस्जिद ना पहुंचा होवे उस्मान दे नाल खड़े होने लई या उहदे दुख नूं साझा करन लई। ये शाही इमाम अंकल दी को व्यक्तित्व सीगा, एक उन्हां दी नेचर सीगी या उन्हां दी मुहब्बत सी, उन्हां दा प्यार सी जिहड़ा उन्होंने सारियां ते लुटाया। कोई भी एक ऐसा बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं अंकल को आया तो इस मस्जिद तो खाली हाथ मुड़िया, चाहे वह अपने आप दे विच किसी पावर च सीगा, चाहे वो एक गरीब सीगा। अंकल नाल मेरा रिश्ता आशू जी करके बनया, पर सब तो ज़्यादा रिश्ता साडे परिवार दे विच अंकल दा सीगा मेरे बेटे नाल। और जो मुहब्बत जो प्यार मेरे बेटे नूं अंकल कोलों
ਆ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਨਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। परिवार रिश्ते बनाने बड़े सौखे है पर निभाने बहुत औखे है। तो आज जिन्ने लोग इत्थे बैठे है ये अंकल दी को मुहब्बत है या उन्हां दा सत्कार है कि आपां सारे चाहे 2 घंटे हो जान इत्थे बैठे रवांगे। और उस परमात्मा अगे, अल्लाह अगे, वाहिगुरू अगे मैं अरदास भी करदी हाँ कि मेरे छोटे वीर उस्मान नूं जिहड़ी अज जिम्मेवारी सौंपी जा रही है, ਵੱਡੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ परमात्मा ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। जिम्मेवारी बहुत वड्डी है तो शायद कंधे हले बहुत छोटे है पर उस्मान भैया सारे थोड़े नाल है, चाहे किसी भी पार्टी तो होन, परिवार तो होन या सारे थोड़े गुरु होन। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सरदार प्रितपाल सिंह पाली वीर जी गुरुद्वारा दुख निवारण साहब तो प्रेजिडेंट भी ने और मौलाना हबीबुर रहमान साहब के धर्म के भरा भी ने। मैं उन्होंने और मौलवी साहब को कहांगा कि वो जिहड़ी रस्म है पगड़ी वाली, पंजाब के शाही इमाम की पगड़ी, आराम नाल बैठो भाई, आराम नाल बैठो प्लीज, आराम। अगर इस तरह होएगा नहीं, हौच पौच नहीं करनी। एक मिनट रुक जाओ अभी, आप लोग बाद में पहनाएंगे। पहले धर्म गुरु और जो हमारे मेडिकल लोग हैं वो करेंगे। पहले आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, सब लोग, सारे लोग बैठ जाओ। बस 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 ठीक है, गूगल दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए। पहले देखिए आज जो है सिर्फ जो है जो रस्म है पगड़ी, मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी को मैं चीफ इमाम ऑफ इंडिया डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी आज मैं आप सबके सामने ये इनका ऐलान करता हूँ सबके सामने कि मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी को शाही इमाम और चीफ इमाम पंजाब मुकर्रर किया जाता है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से मरहूम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबके साथ मिलकर, सभी धर्मों के साथ मिलकर, सारे धर्मों के साथ मिलकर इसी तरह से इस मुक़द्दस का, इसका तक़द्दुस का, इस इमामत का फराइज़ अंजाम देंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरह से सभी धर्मों के संतों का, तमाम सारे संत महापुरुषों का जिस तरह से इज्जत और सम्मान पूरा करते रहेंगे, सबको एक साथ लेकर चलेंगे और तमाम पूरे पंजाब ही नहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत के पैगाम को आम करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं इनको अब जो है अपने जो सबसे पहले एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। चल भाई बोल सारा, बोल आज जेड़ा ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, बैठ जाना।
हाँ बीच में बैठ जाओ। आज जरा एक मिनट बाद बैठे गए यहाँ बैठे। एक मिनट बाद आज मुस्लिम अगे आज जरा पंजाब का शाही इमाम इत्थे आओ सेंटर नियुक्त करन जा रहे हैं। ये खानदानी रवायत है और बड़े शाही इमाम 34 साल शाही इमाम रहे ने पंजाब के, उन्होंने जगह खानदान की रवायत के मुताबिक उस्मान रहमानी नूं जिहड़ा है शाही इमाम नियुक्त शाही इमाम दी पगड़ी मोहम्मद उस्मान रहमान जी के सिर के उपर, जिथे परिवारक मैंबर और साडे धर्म गुरु और साडे बहुत ही सत्कारयोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खड़ा हो जा। गाबिया साहब सम्मानित कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना शहरी तरफ तो आशीष शर्मा जी और सारे साथी। एक मिनट कल्ले कल्ले आ जाओ। बस साडी भैन फोटो ला भाई पीछे हो जाओ, पीछे सारे पीछे हो जाओ। सरदार प्रितपाल सिंह जी पाली साडे गुरुद्वारा दुखी निवारण साहब को प्रेसिडेंट ने सम्मानित कर रहे हैं श्री साहब और उन्होंने जेडे दे पिता जी ने दित्ती सी उन्होंने भी दे रहे हैं श्री साहब। साडी भैन ममता आशू जी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब दे, साडे धर्म पत्नी भैन छोटी ममता आशू जी, राकेश पराशर जी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, सरदार दविंदर सिंह जी पाली करीमपुरा बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार श्री दर्शन रतन रावल साहब, उन्होंने भी सम्मान किया है। विजय दानव जी, कुलजीत दुखिया जी साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार कुलवंत सिंह दुखिया जी के पुत्र ने। सारे आराम नाल आई जाओ कल्ला कल्ला। जुगेश हांडा जी साडे जिला कांग्रेस कमेटी यूथ के प्रधान। पीछे हो जाओ, एक करके आ जाओ भाई यार, पीछे हो जाओ, एक करके सारे आ जाएंगे। बराए मेहरबानी पीछे हो, एक करके सब बैठ जाओ सारे, सर बैठ जाओ सारे, सब बैठो पहले, सब लोग बैठ जाओ, बैठो पहले सारे एक मिनट बैठ जाओ सरदार जी, बैठ जाओ सारे। मैं कल्ले कल्ले का नाम लवा, एक मिनट बड़े रिस्पैक्ट के नाल मैं कल्ले कल्ले का नाम लेना, वो ही आई जाओ। हाँ मैं सरदार दविंदरपाल सिंह जी पाली करीमपुरा शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ, श्री अज्ञान स्थल मंदिर के प्रधान जगदीश बजाज जी के लगते जिगर परवीन बजाज साहब, श्री ज्ञान स्थल मंदिर तो राकेश पराशर जी काउंसलर हनुमान मंदिर की तरफ तो अशोक पराशर पप्पी जी, साड़ी फ्रूट एसोसिएशन के प्रधान माला सिंह जी के पोतरे अखिलेश सिंह जी के पोतरे, वो अपना सम्मानित कर रहे हैं। साडे वकील साहब मैंबर श्रोमणी कमेटी गरचा साहब हरभजन सिंह गरचा साहब, हरप्रीत सिंह जी गरचा साहब, बहुत ही सत्कारयोग साडे वाल्मीकि धर्म समाज के महान गुरु बड़े भाई श्री दर्शन रतन रावल साहब, उन्होंने वालों भी सम्मान चिन्ह और सारे। मैं
मोहम्मद उस्मान जी साडे पंजाब के शाही इमाम, उन्होंने मैं गुजारिश करांगा कि वो अपना संबोधन देंगे। साडे पंजाब के नवनियुक्त शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमान साहब, सारे बैठो जी, आप सारे बैठिए। अब तकरीर सुनिए, आप 2 मिनट सारे बैठ के तकरीर सुनिए पहले, उसके बाद करेंगे। मौलाना हबीबुर रहमान जी दे लखते जिगर, उन्होंने दे वारिस पंजाब के नवे शाही इमाम परमिंदर मेहता जी भी आ गए, डॉक्टर बाली साहब भी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। पंजाब के नवनियुक्त शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमान जी मैं गुजारिश करांगा। चाचू तुसी उधर आगे बेटा, आई फोटो जानी है, आ लो बेटा प्रधान चाचू को या आगे चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हाँ अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। अज लुधियाना दी इतिहासिक जामा मस्जिद दे विच मेरे वालिद मरहूम मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी तो बाद मैनू जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं अल्लाह ताला नू हाजिर नाजिर जान के बे साहब की मौजूदगी खासकर साढ़े सरपरस्त पीर जी हाफिज हुसैन अहमद साहब बूढ़िया और भारत के चीफ इमाम साढ़े सरपरस्त जनाब मौलाना उमैर इलियासी साहब अते जिन्ने भी लोग इत्थे आए ने उन्हों की मौजूदगी अल्लाह ताला नू हाजिर नाजिर जान के वादा करदा कि इस जिम्मेदारी नू मुकम्मल ईमानदारी दे नाल, प्यार और मुहब्बत दे नाल अते हिम्मत दे नाल बिल्कुल बेदाग तरीके नाल अदा करता रहांगा। और जिस अंदाज नाल मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुल्क अते कौम का परचम बुलंद रखा है, अपनी जिंदगी के आखिरी साह तक उन्होंने कायम रखांगे इंशाअल्लाह। दो ऐलानात, पहला ये कि प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी खत्मे नबूवत की तहरीक है वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और दूसरा ये मेरे बहुत ही अजीज़ चचा मोहतरम दर्शन रतन रावण जी बैठे ने, इन्होंने हुणी एक मैनू गल कही तो इंशाअल्लाह ताला पहली फुरसत दे विच लुधियाना की इतिहासिक जामा मस्जिद जिहड़ी है ये दोबारा तो नवी तामीर की जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं दोस्तां नू ते दुश्मनां नू ये कहना चाहांगा कि तुसी हर जगह हर वेले जो उम्मीदां मेरे तो रखते हो मैं उहदे ते खरा उतरांगा। जद भी गोली या कुछ बजेगा उस्मान की छाती ते बजेगा, कभी पिठ नहीं दिखावांगा इंशाअल्लाह। अखरा नाल जी मौलाना कराएंगे, मौलाना जुल्फिकार साहब कहांगे। इन्हां ही अखरा नाल भारत के चीफ इमाम साहब के नाल तशरीफ ले आए मौलाना मुफ्ती जुल्फिकार साहब नू गुजारिश है कि वो दुआ करान ते ये प्रोग्राम जिहड़ा बैठ जाओ भाई सब लोग तशरीफ रखिए सब। क्या कर रहा हो भाई, दुआ हो रही है बस सब जल्दी से। आठ साहब पीर साहब ये हैं जी जी, बस 1-2 लोग रह गए बस। कले कले आके आराम दे नाल सारे यहाँ सम्मान चिन्ह देते रहो। आगे आगे मुनीर साहब आते रहो बेटा, आते रहो हिमाचल दे वक्फ बोर्ड दे चेयरमैन उम्मीद हुसैन जी, उन्होंने भी मैं दिल दी गहराइयों तो बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि वो चेचे तौर पर आए ने। बहुत ही सत्कारयोग
ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਗਰੀ ਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾਲ, ਇਧਰ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਚਲੋ, ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਚਲੋ। ਲਾ ਲਓ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ। फिर बुलाना 1 मिनट वास्ते, दुआ करनी, दुआ करनी। चलो करो, हो जाओ सारे। तसल्ली से देखो, ज़्यादा अच्छा भाई बैठ जाओ, दुआ होगी, बैठ जाओ, दुआ होगी, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, दुआ होगी। अब दुआ होगी, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। सब बैठ जाओ, दुआ होगी, बैठ जाओ सब। यार बैठोगे नहीं? बैठो यार, बैठ जाओ। भाई बिठाओ सबको, सारा एक मिनट, धक्का ना मारो जी, धक्का ना मारो भाई। दुआ करने, दुआ शुरू, आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाए। आशु बैठ के हो जाएगी, तो बैठेगा ना, चलो चलिए बैठ भाई, साढ़े योगी चलो चलो, हाँ इसको करो, चलो भाई, दरूद शरीफ पढ़िए जल्दी से। आप ही मंगा दें। चलिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वक़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन, हमारी तमाम खताओं को दरगुजर फरमा, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। या अल्लाह, इस वक्त हम हाजिर हैं तेरे घर में। अल्लाह, यहाँ पर जो ये एक तेरे दीन की, तेरे इस बंदे को जिम्मेदारी दी गई है, अल्लाह इसको कबूल फरमा, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह तमाम शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाई, शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, जादूगरों के जादू से, बदनजरी से महफूज फरमाई। अल्लाह तमाम ने कामों में मदद व नुसरत फरमाई, हर तरह से हिफाजत फरमाई, इज़्ज़त आबरू जान व माल ईमान की हिफाजत फरमाई, इनकी रुफ़ाक़ा की हिफाजत फरमाई, इनके ख़ानदान की हिफाजत फरमाई, हज़रत मौलाना की मग़फ़िरत फरमा, दर्जे बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से मनव्वर फरमा, जो अकाबिर हमारे चले गए उनकी क़ब्रों को नूर से मनव्वर फरमा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सब पर रहम फरमा। अल्लाह उनकी जुदाई पर जो हमें गम है, ख़ानदान और हम सब को, हम पूरे मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन को, अल्लाह हम सब को माअल खाना के सबको सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह हम सब को उनके सही नक्श कदम पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हम सब को वो नेक काम करने की तौफ़ीक़ दे जो वो करके गए हैं, और हमें उन सब नेक कामों के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, इस इलाके की, इस शहर की हिफाजत फरमा, पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा, अमन व सकून आफ़ियत राहत नसीब फरमा। या अल्लाह, इत्तेहाद मोहब्बत इत्तफ़ाक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सब पर रहम फरमा दे, हम सब की पाक मुरादों को पूरा फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत मुबारक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ना करो, धक्कम धुक्की माइक इधर होना है। हो जाएगा। भाई आप कोई नहीं रखा अच्छा चलो जी आ जाओ। आ जाओ पवन भाई। इसके यार माइक को हटाओ। माइक करो पीछे आ गया। इसका माइक को हटा दो। एक मिनट हेडफोन है तेरे पहले चले। चलो आप पीछे हो जाओ, आपने डाल दी ना पीछे होते रहो। बात सुनो, आ जाएगी जल्दबाजी ना करो, ज़्यादा तो पीछे हो गई, ज़्यादा अगले कर रही ज़्यादा तो पीछे हो जाओ, रास्ता खोल दो, सबकी आ रही खुल जाओ डाल दिया भाई, निकल जाओ। एक मिनट भैया, खुल जाओ, सबकी तस्वीर एक मिनट हाँ ला दो। बैठ जाओ। क्या हुआ? बाकी लोग पीछे हो जाना, बाकी ये पीछे हो जाओ, इधर नहीं आ जाओ, तुम नंगे नहीं होना। अब माइक की बंद कर दो सर, माइक बंद कर दो। चादर से उठा दो भैया, नहीं सुन लो पीछे वाले। भाई
उधर से जितने मुसाफा का तब इधर से आ जाओ, चल रही है फिर भाई खुल के ये तार अगे ना खड़ो, मेरी गल सुनो, जगह बनाओ। आटो जरा पीछे भाजी, मोबाइल पीछे यार, मोबाइल नीचे कर लो यार। गोल्डी एक मिनट यार, एक मिनट जगह का बनाओ यार। आप भाजी आटो जरा, गोल्डी आके भाजी एक मिनट हटो यार। भाई मैंने लाइट चला रखा है, एक मिनट साइड पीछे हो जाओ, साइड में। मैं कह रहा मेरा कैमरा में भेज जाए, मैं तुम्हें कहा कह रहा तो भाई साइड तो बाकी बंदे मेरी भी तारें लगी आ भाई आज जेड़े मीडिया वाले वो सामने आ जाए, बाकी पीछे हो जाए भाई, बाकी सारे पीछे हो जाए भाई, हट जाओ भाई, सारे भाई आप लोग सारे हट जाओ ना यार, हटो ना भाई, इधर हो ना, हट जाओ यार बैठ जा साइड से, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम पीछे हो जाओ यार।
एक मिनट के लिए बैठ जाओ, सारे बैठेंगे तभी सबकी तस्वीर आएगी। बैठो तो बैठ जाओ सारे भाई हिलो ना बस ठीक है भाई। हाँ जी इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर जी सर। शुरू अल्लाह ताला का बड़ा मेहरबान और आज लुधियाना शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना हमीद साहिब लुधियाना के इंतकाल तो बाद अज इस्लामी रिवायत और उन्होंने नसीहत के मुताबिक सारे शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों ने और तमाम बड़े उलमा कराम ने मैंने जो जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला हाज़िर जान के ये वादा करता हाँ कि मुकम्मल जिंदगी जब तक हाँ बड़ी ईमानदारी के नाल भाईचारे के नाल प्यार नाल अते पूरी जरूरत और हिम्मत के नाल इस जिम्मेदारी को मैं सुनिया पूरे पंजाब के लोगों कि मैं अपने पिता जी को 30 साल बड़ी चंगी तरह देखा और उन्होंने हर मौके के उत्ते मुसलमान और इस्लाम का नुमाइंदा होंदे हुए इंसानियत की गल की, भाईचारक सांझ की गल की, जब कभी भी किसी ताकत ने भाईचारे को तोड़न की कोशिश की तो इस खौफ तो परे हो गए कि साडा कोई नुकसान हो सकता है, हमेशा पूरी ताकत के नाल उन्होंने ताकतों के खिलाफ बोलते रहे जिहड़े कि इंसानियत को नुकसान पहुँचाना चाहते। तो मैं तुहानूं यकीन दिलाना कि आने वाला समा बहुत चंगा होएगा और अगर उस समय के दौरान कभी मेरे देश से कोई औकड़ आती है, मेरे धर्म से कोई औकड़ आती है तो मैं अपने पिता के नक्शे कदम से चलता होया पूरी ताकत के नाल उन्हां अंसरां दे नाल टकरावांगा जिहड़े कि भाईचारे नूं तोड़ना चाहते हैं तो भाईचारे नूं क़यामत तक कायम रखांगे इंशाअल्लाह ताला। और लुधियाने की ये जिहड़ी इतिहासक जामा मस्जिद है जिन्होंने मान प्राप्त है कि पूरे पंजाब के मुसलमानों का मरकज़ है तो इनू सलामत रखांगे और इसका जो परचम है अपनी जिंदगी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैनू एक मजबूत हत्था तो अता होया है इसी तरह यह सिलसिला जोड़ा है उन्होंने अगे जारी रखांगे। इन्हीं यत्नां नाल ठीक है, थैंक यू सर। यार भाई यार तू कहाँ बीच में मार हर जगह तुम सब लोग बैठते रहे और उठते भी रहे। चलो पीछे पीछे